Good morning, students. Today we will study the second part of our present chapter, chapter number 9, that is heredity and evolution. Before this, we have completed heredity, in which we have seen how and what are the factors which are responsible for the transmission of traits from one generation to the next generation. The rule, the laws which are governing the different strategies by which the organism inherit the traits from their parents and it will transmit to offspring. All these things we have seen. Now we have the second part of this chapter, that is the evolution. From the pre-existing lives, from the simpler pre-existing lives, the present complex form of lives, which gradually comes, that is known as the evolution. But evolution is not a simple thing. It has many more component things which are responsible for the evolution. When we are talking about the evolution, it means we are not only talking about the evolution in the living organism. The evolution may occur in the non-living matters also. But when we are talking about the evolution of the living organism, that means we are talking about the organic evolution. Now look some important definitions of the evolution which may helpful for providing us the different factors which are responsible for evolution, like the process by which complex forms of lives with organs and organ systems have evolved. Here you may look the lives with organs and organ systems have evolved through modifications from simpler life forms through ages is known as evolution. In this definition, it is very clear that the evolution is not an instant process. Evolution is not an immediate process. Evolution is a gradual process, and the evolution may not occur only that the organism has changed their form from simpler to complex. How they will change their forms? They will change their forms through the different organization level, and that dependent upon the habitats where they are living. What are the demands of the habitats according to maintain the survival fitness of that habitat? अपने आप को सही ढंग से उस हैबिटेट में, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, जिस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उस हैबिटेट में अपने आप को कामयाबी के साथ, सफलता के साथ रखने के लिए अपने अंदर जो चेंजिंग करेगा, तो यही चेंजिंग जो है इवोल्यूशन के कारण बनेगा. ये चेंजिंग इस तरह से नहीं होगा, कई स्तर से होगा, कई लेवल से होगा. ये लेवल जो है किस तरह से स्टार्ट होगा, समझिए कि सेल्यूलर लेवल से स्टार्ट होगा, और आगे अगर आप बढ़ जाएं तो मोलिकुलर लेवल से स्टार्ट होगा, यानी कि वेरिएशन से स्टार्ट होगा, यानी कि डीएनए के एरर्स के कारण जो वेरिएशन होता है वहाँ से स्टार्ट होगा. तो दीज आर द सम फैक्ट्स. दैट इज़ वाई हियर written in the definition that which complex forms of lives with organs and organ systems have evolved. अगर कोई ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है, किसी पार्टिकुलर स्पेसिस के बारे में अगर हम ये दावा के साथ कह रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, तो फिर हमें उसके प्रीमिटिव फॉर्म के ऑर्गन सिस्टम, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, और उसके बाद फिर अभी जो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसके ऑर्गन और सिस्टम को देखना है. तभी हमको इस बात का अंदाज़ा मिलेगा कि इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं. ये डिफिनेशन ये बातें बता रहा.
Now look about the second definition. The history of gradual modifications of lives on earth is organic evolution. इस हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें हैं, all the things present in the history, how we will prove that evolution occurs in the living organism. इस इवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले उससे पहले जो इलस्ट्रेशन है उसके जानने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे. उसके बाद देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ थ्रू डिसेंट इज इवोल्यूशन. ये दिस डिफिनेशन हैज़ गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन. इसी डिफिनेशन का देखिए, ये थोड़ा सा उसका एक्सपेंडेड पार्ट है इसी डिफिनेशन का. इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस. Descent means the sequence of gradual change take place in the primitive organisms over million of years and new species are produced. So these are the some definitions of the evolution. Now come to the different points of our topics, like number one, with illustrations the topic evolution has started. You have seen, you may see in your textbook, with illustration it is started. Before that, one important thing is that the living organisms, inbuilt in the body of the living organisms, it is inbuilt tendency to the variations. And especially during the process of why variation, inbuilt tendency of variation, this inbuilt tendency of variation is due to DNA copying error. And during the copying of DNA there are errors, and these errors leads to variations. And when we talking about the sexually reproducing organism, then there is a diversification of this variation. That means there is a greater chances. Why? As because during the process of sexual reproduction there are some important events occurs, like when you're talking about the formation of gametes, how these gametes form in the special reproductive tissues. By the special reproductive tissue, when there is a formation of the germ cell, whether it is the male germ cell or the female germ cell, these germ cells are produced due to the process of meiosis cell division. And during that process of meiosis cell division, there is a greater chances of the reshuffling of the chromosomes. Whether you're talking about this reshuffling in the by means of the interchanging or the linkage of many more things. Understand? So this recombination is the factor which we may see in case of the sexually reproducing organism, as because sexually reproducing organism can produce the germ cells by the process of meiosis, and during the process of meiosis there are greater chances of the variations, as because due to the different phases of the meiosis in which we have may seen the recombination processes. These recombination processes may be the segments of the sister chromatids may replaced by the non-sister chromatids, and there are linkage of the genes from one segment to the another. There are so many factors responsible for that. And after that, the second important thing is that there is a chances for this type of reshuffling occurs both in the male, both in the female, and when they produced gamete, the germ cells, when the germ cell united, after the union or the fertilization of these germ cells, there is a again chances for
the chance gamete the gamete when united, at that time there is a possibilities of the different type of assortments and segregations, and these segregations of the allele are the which are present within the gamete, or which are the version, which are the representative factors of the genes, may be assort, may be segregate during the union, during the fusion of the gamete. These are such things which may give a greater chances. That is why I have written here diversification of greater chances for variations. There is a diversification of variation we will see in cases of the sexually reproducing organisms. This is one fact which you have seen during the process of sexually reproducing organisms, and also you have seen how these variations, how these traits, how these characters are transmitted from one generation to another in the heredity. The chapter has started with an illustration. This illustration is looking very simple, but it has there are red betals. Betals are the representative members of the phylum Arthropoda, the class Insecta, just like that of the grasshopper, like the cockroach which you have seen in the case of the Arthropoda. These betals are also the examples of Arthropoda. In this illustration, there are three different situations given. There are three different situations illustrated. What are that situations? First, you think about that there is a population of red betals. The red betals are living in the bushes where there are green plants, green leafy plants are present, and usually these green betals feed on that green leafy plants. There is a variation occur in this population of the betals. What is this variation? This variation in the, but before that may you also see the another aspect. Where the betals are living, जहाँ betals रह रहे हैं बुशेस में, उन झाड़ियों में जहाँ पे हरी पत्तियाँ हैं, जिन हरी पत्तियों को ये अपना फूड बना रहे हैं, वहाँ पे कौवे, क्रो का भी रहने का है। क्रो क्यों वहाँ पे है? क्रो वहाँ पे इसलिए आता है ताकि वो बेटल्स को अपना शिकार बना सके। क्रो feed on the betals, and that means crow mainly feeds and on that particular area on the betals, on the species. They depend on the species of betals. What happened? You have seen that there are chances in the sexually, they can also reproduce, sexual reproduction process occurs within the betals. There is a chances for variation. And in this regard, what happened? In the first case, there are appearance of green betals from the red betals. There is a appearances of green betals. These green betals, when appear in these populations of betals, these green betals are similar to the color of the leaves, and when the betals present on the leaves on that plants,
दे कैन नॉट ईजली डिटेक्टेड बाय द क्रो। जब कौवा इस हरे रंग के बेटल्स को देख रहा है तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वो चूँकि फ्लाइंग उड़ता हुआ रहता है, उड़ते में उसको पिकअप करना है, तो वो जब पत्तियों के रंग के साथ बेटल्स का रंग मिल गया, देयर आर नाउ सिमिलरिटीज बिटवीन द कलर ऑफ द लीव्स एंड द कलर ऑफ द बेटल्स। और ये सिमिलरिटी, ये कलर का जो चेंजिंग हुआ, वेरिएशन हुआ, जो किसी रेड बेटल से ग्रीन बेटल हुआ और फिर जो है उस पॉपुलेशन में ग्रीन बेटल्स फ्लोरिश करने लगा, उसने और अपना रिप्रोडक्शन किया और उसके जनरेशन जो है ग्रीन बेटल्स होते चले गए। तो इससे क्या हुआ कि ग्रीन बेटल्स जो है एक एडवांटेज पा गया रेड पे, और इतना बड़ा सर्वाइवल एडवांटेज पा गया। यानी कि अगर क्रो जो है फिट कर रहा है ग्रीन बेटल पे तो रेड बेटल पे, तो अब क्रो के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं रहा कि वो उसको फिट करे, क्योंकि वो उसको उतना ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, नॉट क्वाइट विजिबल, एंड दैट इज़ वाई क्रो इज़ नाउ अनएबल टू ईट देम, एंड दैट इज़ द सर्वाइवल फैक्टर फॉर द बेटल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ ये बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये एक घटना ऐसा घटा। अब इसके बाद आइए, रेड बेटल्स से कलर का जो चेंजिंग हुआ, ये ग्रीन चेंजिंग आपने देखा इसमें, उसके बाद सेकंड में ब्लू कलर का चेंजिंग हुआ। ये ब्लू कलर का जो चेंजिंग हुआ, इस चेंजिंग में आपको क्या होता है, रेड से ग्रीन हुआ तो आपने देखा, यू हैव सीन व्हाट विल हैपन, देयर इज ए लिटिल चांसेस दैट क्रो विल प्रे ऑन देम ड्यू टू द color similarities between the leaves and it is not easily detected by the crow. Now when there is again color changes, variation occurs within the populations of the beetle, at that time what will happen, there will be appearance of the blue colors beetle, and this blue colors is now present in this population, and it is also reproduce these blue color beetles, and they may pass it to the next generation. But unfortunately what will happen, बदकिस्मती से वहाँ पे एक घटना घट गया। क्या घटना घट गया कि वो जो बुशेस थे, उस बुशेस पे जो है हाथियों का आक्रमण हो गया। अब ये हाथी देखिए, यहाँ पे जो रेड बेटल से ब्लू बेटल्स हुआ था, अब यहाँ पे कुछ जो है स्पेसिस ब्लू बेटल्स के भी रहे, रेड के भी रहे, मिक्सअप रहे, कुछ रेड भी रहे, कुछ ब्लू भी रहे। और जब हाथियों का आक्रमण हो गया, व्हेन एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द बुशेस, आफ्टर डिस्ट्रक्शन बाय द एलिफेंट, जब इस एलिफेंट के डिस्ट्रक्शन के बाद जो वहाँ पे स्पेसिस बच गया, वो ये सारा स्पेसिस एलिमिनेट कर गया, उसके डिस्ट्रक्शन के कारण बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लेकिन जो स्पेसिस बच गया उसका कलर ब्लू था। अब ये जो है आपका नेक्स्ट जनरेशन को मिला ब्लू कलर का बेटल्स, है ना, ठीक है। तो ये सेकंड चेंजिंग आपने देखा सेकंड इलस्ट्रेशंस में। अब आइए थर्ड इलस्ट्रेशंस में क्या दिखाई, क्या माने होता है घटना। 3 सिचुएशंस दिखाया गया। पहला सिचुएशन आपने देखा रेड से ग्रीन हुआ, दूसरा सिचुएशन में आपने देखा कि रेड से ब्लू हुआ, और इसमें रेड और ब्लू मिक्सअप कलर चल रहे, लेकिन इत्तेफाक से व्हेन देयर इज ए डिस्ट्रक्शन बाय एलिफेंट, ऑल द रेड बेटल्स eliminated, and the remaining betals which are present now in that population is the only blue color, and it is now this blue color has passed to the, but this blue color is also detectable by crow as like that of the red betals। लेकिन ये ब्लू कलर जो वेरिएशन दिखाई दिया, इस ब्लू कलर के वेरिएशन में ये साफ समझ में आता है, एनालिसिस अगर किया जाए, ऑब्जर्वेशन अगर किया गया, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से रेड बेटल्स को आसानी के साथ क्रो शिकार कर सकता था और करता रहा है, उसी प्रकार से वो ब्लू को भी करता रहेगा, क्योंकि ब्लू भी उसे आराम से दिखाई दे रहा है, कंफर्टेबली दे कैन मे ईजली डिटेक्टेड
दैट इज़ वाई नाउ। तो अब अगर आप इन दोनों का कंपेरिजन करें, इफ यू विल कंपेयर दिस चेंजिंग ऑफ द कलर एंड दिस चेंजिंग, देन व्हाट विल योर ऑब्जर्वेशन, इट इज़ वेरी क्लियर दैट योर ऑब्जर्वेशन इज दैट दिस green petals are the meritorious over this blue, and it is not only meritorious, it is the color which provide them a survival factor in their environment. तो ये इसी को आपको नाम दिया गया नेचुरल सिलेक्शन का। अब इसके बाद आइए तीसरा में क्या हुआ, व्हाट विल हैपन इन दिस, देयर इज ए starvation. What is this starvation in these populations of the beetle? Starvation means there is the bushes, the plants which are present in that area is now got affected. Infection हो गया, उसे कोई बीमारी हो गई उन पत्तियों में, और जब पत्तियों में बीमारी हो गई तो नाउ देयर इज ए inadequate quantity of foods available to feed the beetles. ऐसा होने से क्या हुआ, जब उसको भोजन कम मिलने लगा, जब उसको उस मात्रा में भोजन नहीं मिला जिस मात्रा में उसको भोजन चाहिए था, तो बेटल्स के जो हैं साइज रिड्यूस हो गए, बेटल्स का वेट जो है कम होने लगा। इस रिड्यूस साइज का बेटल्स ने यहाँ पे जो सोमैटिक चेंजिंग उसके बॉडी में जो आया, दैट सोमैटिक चेंजिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट दिस कैरेक्टर or this trait may be inherited. No, this is simply a change that impact on the somatic or the body of the organism of the species or that is the beetles. इस starvation के कारण, इस भोजन के कमी के कारण, फूड की कमी के कारण उसके सोमैटिक स्ट्रक्चर में, उसके सोमैटिक या उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग हुआ, उसके सोमैटिक में चेंजिंग हुआ, लेकिन ये चेंजिंग उसके जर्म प्लाज्म में नहीं हुआ, उसके डीएनए में नहीं हुआ, इसलिए इसे वो कैरेक्टर नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ। जिस तरह से हम अगर खूब एक्सरसाइज करें तो हमारा मसल्स जो है ठीक हो जाता है, हम मस्कुलर मैन बन जाते हैं, या इस तरह से हमने कोई एक्सपीरियंस को गेन किया या कुछ और अपने इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट के इंटरएक्शन से जो सोमैटिक चेंजिंग दिखाई दे रहा है, दैट चेंजिंग इज नॉट इनहेरिटेड टू द inherited by the offspring, as because this cannot impact on the DNA, it cannot impact on the gene, it cannot change the genotype of the offspring, and that is why you well know that if there will be changes required in the sexually reproducing organism, that means the changes must be in the germ cell of the male and the female, and if the chromosomes, if the gene or if the DNA which are present within the germ cell is now if changed, then there will be chances for the genotype changing in the next generation, in the offspring. That's why अगर ये बेटल्स का स्टारवेशन के कारण अगर बेटल्स ने अपने वेट को खो दिया, लॉस कर गया, उसके साइज रिड्यूस हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वो ट्रेट है जो कि ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करे। जैसे ही जो है पत्तियों में माने बीमारियां पत्तियों से दूर हो गई, उन पेड़ पौधों से बीमारियां दूर हो गई, और फिर जो है उसका जो है नॉर्मल कंडीशन हो गया बीमारी से उभरने के बाद। ऐसे भी कभी कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ गया, हम ही लोगों का अपने एग्जांपल ले लें, अगर बीमार पड़ते हैं तो हमें भूख कम लगती है, हम भोजन कम करते हैं, हमारा और भी बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है कुछ ना कुछ अफेक्टेड होता है, जिसके कारण हमारा वेट रिड्यूस कर सकता है। तो क्या ये वेट रिड्यूस किया हुआ जो है एक ऐसा ट्रेट है जो कि इनहेरिट हो सकता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में? नो, इट कैन नॉट इनहेरिटेड एज बिकॉज दिस इज द ओनली एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, 3 चीज़ों यहाँ पे समझ में आई। नंबर 1, ग्रीन बेटल्स का कलर, ग्रीन कलर का चेंजिंग हमें ये बताया कि ये जो है नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि ऐसा चेंजिंग हुआ जिसे नेचर ने सेलेक्ट कर लिया जो उसके सर्वाइवल के लिए कारगर हुआ। दूसरा जो है चेंजिंग तो हुआ,
there is a changing, but this changing is not a survival fitness. ये एक एडवांटेजियस नहीं रहा, ये उसको हैबिटेट में उतना सुटेबल नहीं रहा, इसलिए कि क्रो से अगर उसको बचना था तो ये कलर तो बचा रहा था उसको। और जब कोई स्पेसीज, एक पर्टिकुलर स्पेसीज अपने किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जब अपने दुश्मनों से बच जाएगा, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रगल, वी विल एक्सप्लेन इट इन द केस ऑफ द डार्विन्स थ्योरी। आप देखेंगे 3 तरह के उसमें ये होते हैं। नंबर 1 शेल्टर के लिए स्ट्रगल, नंबर 2 आपका फूड के लिए शेल्टर या स्पेस और फूड, और तीसरा जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर ये कलर एडवांटेजियस है तो ये जो है स्पेसिस, इस कलर वाला स्पेसिस बहुत ही कंफर्टेबली अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता रहेगा। तो दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा चेंजिंग हुआ, जो चेंजिंग तो हुआ, ये नोट ऑन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस पॉपुलेशन चेंज्ड to green. The basic characteristic features of this population also change, that is the blue. And this basic changing, although there is a variation, no doubt, this is also the good thing, but that what is the resultant of this changing? The resultant of this changing is that this has basically changed the characteristic features of that particular in that particular habitat of that species, but that cannot meritorious, that cannot survival to the environment. It is by chance some of the allele may be eliminated and some others allele may be fixed by chance, and that is the genetic drift. We will see the definitions of all those things. And now, due to the starvation, if there is a reducing in the size, in the weight of the betals, that reduced size betals cannot pass these characters from one generation to another. It is not inheritable characters, as because it cannot impact the DNA or the genotype of the offspring. That is why now look, after these 3 situations, what are the analysis or the observations? 2 important definitions. The first one is the gene migration or gene flow, and the second one is the genetic drift, which you have seen in the second situation in the illustrations, when by chance there is a survival of only the blue colored beetles and there is a complete removal from that particular habitats the color of red, and that blue color is not meritorious, not advantageous in survival, in the survival point of view. Now look here, it is removal of allele from one population or addition of alleles into another population, that is the gene migration. किसी allele का निकल जाना, हट जाना, और किसी दूसरे एलील का इंट्रोड्यूस होना किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशंस में, दैट इज द जीन माइग्रेशन और द जीन फ्लो. बट हियर लाइक माइग्रेशन ऑफ ए फ्यू फ्रॉक्स हैविंग डार्कर और लाइटर कलर फ्रॉम वन पॉन्ड टू अनदर चेंजेस द जीन पूल्स ऑफ बोथ द पॉन्ड्स. अब ये देखिए एक माइग्रेशन दिखाया गया कि मेंढक जो है डार्कर और लाइटर कलर का एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में इधर उधर माइग्रेट करते हैं. तो उसके कारण दोनों जहाँ से जो जिस पॉन्ड से मेंढक ने माइग्रेट करके दूसरे पॉन्ड में गए, तो दोनों पॉन्ड में अब जो है जीन पूल्स, माने वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो हैबिटेट है, एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन में जो डिफरेंट जीन्स एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट इज़ द जीन पूल. माने किसी एक पर्टिकुलर प्रकार का जीन का, माने फ्रीक्वेंसी का तेज़ी से बढ़ना किसी एक खास एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जीन पूल कहलाता है ना. जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज, genetic drift is the change in number
and frequency of genes in small isolated population due to intensive inbreeding। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अगर इसको अभी एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि क्या और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे कि if such type of beetles populations, if divided into subgroups, if that subgroups divided into the subpopulations, those subpopulations are not far away, but it is rare chances for a beetles to migrate, to travel from one such subpopulation to the another due to the somewhat barrier, due to the somewhat geographical isolation, but there is a not far away, and that is why now in that situation what will happen, it will be also related with the formation of new species, and the last and the conclusion, अगर आप बुक पढ़ लें तो कंक्लूजन में इसी को दिखाया गया है कि किस तरह से किसी नए स्पेसिस का फॉर्मेशन किसी पुराने एग्जिस्टिंग स्पेसिस से, प्री एग्जिस्टिंग स्पेसिस से किसी नए स्पेसिस किस तरह से बन रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन दिखाया गया वो ये देखा गया कि बेटल्स के अगर इस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाए सब पॉपुलेशन, इट कैन डिवाइड इनटू सब पॉपुलेशन, एंड दैट सब पॉपुलेशंस आर नाउ लिविंग इन द रेंज ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के इस तरफ, पहाड़ के उस तरफ, इधर उधर इस रह रहे हैं, माने इतनी दूरियां हैं कि वो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे चांसेस हैं जो जीन माइग्रेट करा सकते हैं, और वो चांसेस क्या है? सपोज कीजिए किसी एक सब पॉपुलेशन से क्रो ने किसी एक बेटल्स को पिकअप किया, लेकिन वो उसको नहीं खा सका, मुंह में दबा करके उड़ते हुए फ्लाइंग करता हुआ वो एक सब पॉपुलेशन से दूसरे सब पॉपुलेशन में पहुंच गया और इत्तेफाक से उसने उसको वहाँ पे गिरा दिया। अब वो दूसरे सब पॉपुलेशन में जब वो बेटल्स चला गया तो अब वो मेटिंग कर रहा है उस पॉपुलेशन वाले बेटल से। तो यहाँ पे देखिए, अब अपने खुद से ट्रैवल तो नहीं कर सकता था, लेकिन इत्तेफाक से क्रो के कारण जो है किसी उस दूसरे सब पॉपुलेशन से इस सब पॉपुलेशन में चांसेस बन गया मेटिंग का, है ना। तो ये इस तरह से मेटिंग हुआ तो ये जीन फ्लो हो सकता है। ये तो एक एग्जांपल था। और दूसरा एग्जांपल जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का है, आइए इसको फिर देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस ड्यू टू इंटेंसिव इनब्रीडिंग। अब ये सब पॉपुलेशंस को अगर कुछ और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रखा गया, पहाड़ों और दरियाओं के बीच में, अब ये जो सब पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन जो है बिल्कुल अलग हो गया। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण क्या हुआ कि अब जो है बेटल्स का ये और बेटल्स का ये पॉपुलेशन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण अब इम्पॉसिबल टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू देयर और फ्रॉम हियर वाइस वर्सा। यहाँ से ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ से यहाँ आ सकता। बेटल्स स्पेसिस अब एकदम बिल्कुल कंप्लीट ऐसा आइसोलेशन में हो गया जो बहुत दूरी पे है। दरियाओं को पार करना या क्रो के माध्यम से भी इस तरह से पार करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ उसके अपने सब पॉपुलेशंस होंगे, उसके अपने कुछ सब पॉपुलेशंस होंगे, कुछ अपने उसके सब पॉपुलेशन होंगे, कुछ उसके अपने सब कुछ उसके सब, इसके भी कुछ सब पॉपुलेशंस होंगे, इसके भी कुछ सब पॉपुलेशंस होंगे, इस एरिया में भी इस में भी सब पॉपुलेशंस होंगे। सपोज कीजिए कि ए सब पॉपुलेशन है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें, वो फैक्टर काम करता रहेगा, यानी कि जेनेटिक नेचुरल सिलेक्शन भी यहाँ वर्क कर रहा है, करेगा। कुछ कलर का अपीयरेंस होगा जो कलर मेरिटोरियस होगा, कुछ कलर का अपीयरेंस होगा जो नहीं होगा, जो सेकंड सिचुएशन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो अब आइए फिर इसके बाद देखिए, इस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बाद जब दो
एक ही स्पेसिस के पॉपुलेशंस को दो अलग स्थानों में इस तरह से रख दिया गया, इस तरह से ये रखा गया या है कि अब इसके बीच में आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता है, इसके स्पेसिस यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये स्पेसिस यहाँ नहीं आ सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें जीन पूल या इसमें जीन माइग्रेशन या इसमें जीन ड्रिफ्ट जो है जिस तरह से चलता है चलता रहेगा। और अब देखिए यहाँ पे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ द चेंज इन नंबर and frequency of genes in a small isolated population due to intensive inbreeding. स्मॉल आइसोलेटेड, लेकिन इसका अपना अपना जो सब पॉपुलेशन है ना, ये भी तो आइसोलेटेड किया हुआ है। इस आइसोलेशन के कारण ये अपने से ट्रैवल नहीं कर सकता यहाँ से यहाँ, बल्कि हमने एक क्रो का जो एग्जांपल दिया आपको कि क्रो जो है इसको यहाँ से उठा करके अगर वहाँ ले जाए और उसको ले जाकर वहाँ ड्रॉप कर दे, नहीं खाया, तब ऐसा इत्तेफाक से हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा, इंटेंसिव इनब्रीडिंग। इंटेंसिव इनब्रीडिंग के मतलब हुआ कि एक खास एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एक पर्टिकुलर स्पेसिस अपने ही बीच में जीन पूल जो हो रहा है उसका, जो उसका जीन एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इसी को कहते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव इनब्रीडिंग में लेड टू द इनफर्टिलिटी। ये बायोलॉजी का एक माने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि अगर इस तरह से इंटेंसिव इनब्रीडिंग होता रहा किसी भी स्पेसिस में, तो एक ऐसा समय आएगा कि उसमें इनफर्टिलिटी दिखाई देगा, यानी कि कॉजिंग परमानेंट फिक्सेशन ऑफ सम एलील्स। ये इनसे हो सकता क्या हो रहा है इस तरह से इंटेंसिव इनब्रीडिंग होने के कारण उसके पास जो, अगर सपोज कीजिए कि उसके पास कोई अच्छा एलील होगा, वो फिक्सेशन है ना, कॉजिंग परमानेंट फिक्सेशन ऑफ सम एलील्स। कुछ अच्छा होगा तो फिक्स हो गया, अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी वो फिक्स हो गया परमानेंटली। जैसे ब्लू वहाँ पे हो गया है ना, वो नहीं था, नेचुरल ने उसको सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन वो फिक्स हो गया। एंड डिसअपियरेंस ऑफ ए नंबर ऑफ एलील्स, और कुछ ऐसे एलील्स जो एलील जो है विच द एलील विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द color changes like the green, like that will not fix, that will disappear of a number of alleles and change frequency of others। और दूसरे को जो चेंज होने के बाद, जो फिक्स होने के बाद, उसको फिर आगे उस तरह का एलील बढ़ा या, तो ये जो है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है ना, कि चेंजिंग तो हो रहा है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, देयर इज ए चेंजिंग, बट दैट चेंजिंग इज may change the basic characteristic features or the traits of the organism, but it may not be useful to the species. Understand? तो ये देखिए, इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आए। अब आइए फिर एक मतलब इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। There are chances for the color variations or the other variations which you have seen in the illustration or which may we have not seen, but it will may present here, and due to this type of variations that will be continuous in this geographical isolated subpopulation and this geographical isolated subpopulations, and a time will come। यहाँ पे दो तरह की बातें बताई गई, आपका वहाँ बुक में आपने उसमें देखेंगे कि पहला में तो ये कहा गया कि एक इस सब पॉपुलेशन में से ऐसा हुआ कि क्रो का जो है क्रो नाउ ईटन बाय द ईगल। अब क्रो को ईगल ने खाना शुरू कर दिया। अब ईगल ने जब क्रो को खाना शुरू कर दिया तो किसी एक सब पॉपुलेशन से ईगल का क्रो का खात्मा हो गया। क्रो बहुत कम दिखाई देने लगा। तो क्रो जब कम दिखाई देने लगा तो वहाँ पे अगर ग्रीन कलर का चेंजिंग नहीं होता है, ब्लू कलर का चेंजिंग होता है या रेड कलर के अपीयरेंस होते हैं, तो भी अब उस स्पेसिस को कोई खतरा नहीं क्रो से, इसलिए कि ब्लू कलर और रेड कलर जो कि ईजिली डिटेक्टेबल था क्रो का, अब तो वहाँ पे क्रो ही नहीं है, इसलिए ये ब्लू कलर वो या फिर रेड कलर वहाँ पे आ सकता है, उसका एडवांटेज हो सकता है। लेकिन ऐसे पॉपुलेशन में जहाँ पे क्रो हैं, जहाँ पे ईगल ने क्रो को खाना नहीं, दे कैन नॉट फीड ऑन द क्रो एंड द क्रो is surviving as usual, and what will happen in that population, if in that population if there will be color changing like the blue, like the red, it is not the meritorious. What color it is required here? That is the
requirement of the green color, which is the strongly supported by nature, and that is the natural selection. Later on this will be declared, or this will be discussed or deduced by the डार्विन्स थ्योरी ने बाद में इसी को बताया है कि किस तरह से नेचर सेलेक्ट करता है, यानी कि नेचर कैन डायरेक्ट द इसेंस ऑफ एवोल्यूशन, फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन के जो कुछ फैक्टर्स हैं उसको किस तरह से डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कौन? नेचर। तो दूसरा, जहाँ पे क्रो था, क्रो की संख्या थी, वहाँ पे जो है ग्रीन कलर ही सपोर्टिंग कलर का रहा उस स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए, लेकिन जहाँ से क्रो ही ख़त्म हो गया वहाँ पे ब्लू और रेड दोनों कलर रहा। अब कुछ समय के बाद जब ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं, कौन सी घटनाएं, यानी कि अगर इसका सेपरेशन कम डिस्टेंस के लिए है लेकिन फिर भी चांसेस ऑफ माइग्रेशन हो सकते हैं जीन के, जो आप देखें हो सकता है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी किसी पर्टिकुलर एलील का आ जाना, फिक्स हो जाना, किसी पर्टिकुलर एलील का अचानक से डिसअपियर हो जाना और फिर किसी एक पर्टिकुलर एलील का ही फ्रीक्वेंसी का आगे बढ़ते रहना, जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एवरीथिंग इज नाउ कंटिन्यूड इन बोथ द geographical isolated populations. And if this part of the betals, and now if this part of the betal bring together for mating, for breeding, they cannot now interbreed. अब इन दोनों में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये साबित हो गया कि इस तरह से स्पेसीज बन सकते हैं, है ना, इस तरह से स्पेसीज बन सकते हैं। अब कुछ और फैक्टर्स, स्पेसिएशन क्या है और कुछ इसके और फैक्टर्स देख लिया जाए। Now look here, what are the conclusions of all this discussion? हम लोगों ने जितनी बातें की उसका conclusion क्या है? That is the formation of new species. Speciation, it is the phenomenon of formation of one or more new species from the existing one by evolutionary means. Evolutionary means how they will interact with the environment, what are the changes come in their populations, in the species, what are the natural things which impact them, what are the things which cannot impact them, what are the changing which change the somatic features, what are the changes which brought changing in the germinal cell or the reproductive part, everything. It occur, number one, how speciation occurs. आपने जितने सारे अभी जो एग्जाम्पल्स देखे उसका रिफ्लेक्शन ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द सिचुएशंस विच यू हैव सीन, all the situations which you have seen, all the phenomenon in related with the appearance of the different traits among the populations of the betals which you have seen, that will be reflected in these all points. Like number one, it occurs when two populations are isolated both geographically and reproductively. That means they cannot travel from one part of the isolated place to the another, and इवन दे कैन नॉट नाउ इंटरब्रीड। अब जब एक दूसरे का ट्रेवल ही नहीं कर सकते तो इंटरब्रीड कैसे करेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो दोनों तरह से उसका आइसोलेशन हो गया, जियोग्राफिकली भी हो गया और रिप्रोडक्टिवली भी हो गया, लीडिंग टू ऑलमोस्ट नो जीन फ्लो। अब जीन फ्लो इन दोनों में नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जीन फ्लो बंद। नाउ ओवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्यूमुलेट, डिफरेंट चेंजेस इन ईच सब पॉपुलेशन। अब उसका अपना अपना जो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड सब पॉपुलेशंस में, कुछ और पॉपुलेशंस भी जोग्राफिकली आइसोलेटेड तो है, लेकिन जोग्राफिकली आइसोलेटेड में सारे के सारे स्पेसीज किसी एक जगह पे तो नहीं है, ये दूसरी जगह पर भी है, तीसरी जगह पर भी है, चौथी जगह पर भी, इस तरह से उनका सब पॉपुलेशन है ना, A B C D। तो ये जो है सब पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा जो जमा होते रहेगा इस सब पॉपुलेशन में। नेचुरल सिलेक्शन भी ऑल्सो ऑपरेट डिफरेंटली इन दिस डिफरेंट लोकेशंस। टुगेदर नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट विल
such change that together natural selections and genetic drift will cause, यहाँ पे होना चाहिए cause such changes, caused such changes that these two groups, such changes means यहाँ पर ये जो such changes है, it is very important. What is this such changes? Such changes means the changes in the genotype, the changes in the DNA. This such changes is not the simple. Such changes means severe changes in DNA or the gene, that these two groups will not be able to reproduce with each other. माने अब इतने इसमें चेंजिंग हो कि अब एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं टू विथ ईच अदर इवन इफ दे हैपन टू मीट, अगर इत्तेफाक से उन्हें एक दूसरे से मिला भी दिया जाए तो भी। अब इसके बाद देखिए लास्ट कंक्लूजन, देखिए इतने सारे घटनाओं के बाद क्या होगा। डीएनए सेवियर चेंजेस causes change in the number of chromosomes or gene expression. Eventually the germ cells of the two groups cannot interbreed with each other. अब उसके गैमेट एक दूसरे से नहीं इंटरब्रेट कर रहे हैं, क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, with each other. This leads to emergence of new species. In this way the new species has formed. Today we have discussed a lot, but now a major portion of the evolution is untouched. I hope that in the next class we will discuss all those things.